Okay, so up to now we have studied that the principle of double entry system, ठीक है, which according to which there are two effects in every transaction of in every financial transaction. Okay. Principle of double entry. ठीक, according to this principle, each financial transaction have two effects, but that effects will be limited to capital, assets, liability, expense loss and profit and gain. There is no any sixth effect. ठीक है, so these two effect will be limited to these points only. ठीक है, there is no sixth point. Okay. Wait a minute. So these two effects will be limited up to this only. Either capital will be increasing, decreasing, or asset will be increasing, decreasing. ठीक है, और liability, it will affect liability, expense, loss, profit and gain. ठीक है, this we study with the help of all this we study. Just a minute. ठीक है, so all this we study with the help of accounting equation. So in accounting equation chapter, we prove that yes, every financial transaction have two effects, and after every transaction, A is equal to C plus L. A is equal to C plus L means asset is equal to capital plus liability. ये हमने प्रूव किया हर ट्रांजेक्शन में. ठीक है, done. Okay, but according to this principle, these two effects are one is called debit effect and another is called क्रेडिट इफेक्ट. ठीक है, कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था. आई डोंट थिंक क्या है कुछ, और मेरे साथ ही नहीं था, सारे टीचरों के साथ ये प्रॉब्लम थी. कुछ जियो के टावर में इशू था, सो इस वजह से कल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था. ठीक है, बट आज हम उस पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट. ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं, बट इट इज़ फुल नेम इज़ डेबिट एंड हियर इट इज़ वी कॉल इट क्रेडिट. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट दिस टू इफेक्ट्स, sometime one effect is increasing capital, decreasing capital, or sometime asset is increasing, decreasing. Okay, now according to this principle, these two effects can be classified as debit effect and credit effect. Now which effect is debit effect and which effect is credit effect? This we are going to study in the topic the golden rules of debit and credit. ठीक है, these golden rules
of debit and credit will explain that which effect will be debit and which effect will be credit, and these golden rules will help us with this help of golden rules we can record the transactions in journal proper. Now what is journal proper? Journal proper is the first primary book which record, सबसे पहला प्राइमरी बुक है जिसमें हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. दिस बुक इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. और जर्नल प्रॉपर बुक में इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. तो इस वजह से जो एंट्री हम करते हैं इस जर्नल प्रॉपर में हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. So that's why the entry we are doing in this journal proper in this book is called journal entry. ठीक है, clear? Basically journal entry is nothing deciding which effect is credit and which effect is credit effect in a respective financial transaction, and to record that debit and credit effect in the journal proper, and that's why it is called journal entry. Clear? Now we have to focus our entire things on this point. What is the golden rules of debit and credit? ये क्या है, ये golden rules कौन सी बला है, कैसे पता चलेगा कौन सी डेबिट एंड क्रेडिट है. Now let's move to the golden rules. Golden rules of debit and credit. Okay. Now व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट? एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, गोल्डन रूल को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो क्या है डेबिट क्रेडिट का मतलब? देखो कल मैं आपको नेट पे दिखा रहा था बट मैं आपको उतना टाइम नहीं है बिकॉज वी क्या कल का शेड्यूल ऐसे ही बिगड़ गया तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे. तो डेबिट मीन्स व्हेन something is due to business. Okay, and credit means when something is due on business. Okay, तो to और on का ही फर्क है बस डेबिट और क्रेडिट में. क्लियर? तो कोई मुझे थोड़ी सी इंग्लिश में अच्छी जानकारी रखने वाला स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, ये टू और ऑन से क्या फ़र्क पड़ गया, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी जल्दी, सारा लाइन एक है बस टू और ऑन में फ़र्क आ गया. सो ऐसा कोई भाई जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो या इंग्लिश जिसका फेवरेट सब्जेक्ट, चलो वो छोड़ो, बताओ ये पहली लाइन क्या बोलती है, दूसरी लाइन क्या बोलती है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस इन हिंदी? हिंदी में ही बताओ. बहुत अच्छी बात है, सब गूंगे हैं. ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करो ये एक पर्सन है ए, ठीक है, इसने बी को पैसे दिए, गिवन बी को पैसे दिए, ठीक है, और सी से पैसे लिए टेकन. सो विच अमाउंट इज ड्यू टू ए एंड विच अमाउंट इज ड्यू ऑन ए? कैन यू टेल मी? वापस रिपीट करना. A has given some amount to Mr. B, ठीक है, and has taken some amount from Mr. C. So tell me which amount is due on Mr. A and which amount is due to due to Mr. A. देखो इसका मतलब पता है क्या है, आप लोग की इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. ठीक है,
आप लोग काम ही नहीं करते हो। आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने तो इंग्लिश उस हिसाब से समझी है। हाँ बोलो क्या है, आप ही बताओ। सर ए ने जो बी से किया है वो क्रेडिट इफेक्ट है, और सी ने ए को किया है मैं तो वो ए के लिए मैं क्रेडिट। मैं तो कोई क्रेडिट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैंने अभी समझाया कहाँ डेबिट क्रेडिट इफेक्ट। मैं तो बस बता रहा हूँ डेबिट क्रेडिट का ये मतलब होता है। डेबिट मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ ड्यू टू बिजनेस और व्हेन समथिंग इज़ ड्यू ऑन बिजनेस। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की बता रहा हूँ कि एक पर्सन ए है, उसने कुछ पैसे बी को दिए हैं और कुछ पैसे उसने सी से लिए हैं, ठीक है। तो विच 20, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो अमाउंट है वो ड्यू टू है ए के ऊपर और कौन सा ड्यू ऑन है ए के ऊपर, यही तो पूछ रहा हूँ। टू और ऑन का डिफरेंस ही तो पूछ रहा हूँ। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स, टू से ही टूवर्ड्स निकला है, समझ में आया? उसकी तरफ। हाँ, टूवर्ड्स का मतलब उसकी तरफ। तो टू का मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्लियर। सो ड्यू टू बिजनेस मतलब कि बिजनेस के प्रति। तो बी को ए को पैसा देना है ना, तो दिस इज ड्यू टू ए, बिजनेस के प्रति। ड्यू ऑन बिजनेस पे, दिस इज ड्यू ऑन। सी को पैसे ए को देने हैं, ए को सी को ए पैसा देगा, तो ये इसके ऊपर उधार है, क्रेडिट है, और ये इससे पैसे लेगा। बी से इसको पैसे लेने हैं और सी को इसको देने हैं। तो जिसको जो अमाउंट, ऑन का मतलब होता है जब हमको किसी को देना है, और टू का मतलब है कि हम किसी से लेंगे, हम जब किसी से लेंगे, दैट इज ड्यू टू। समझ में आया? तो डेबिट इफेक्ट क्या होता है? वो सारी ट्रांजेक्शन, वो इफेक्ट जिसकी वजह से बिजनेस को कुछ मिल रहा है। और क्रेडिट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। समझ में आया? बिजनेस को देना पड़ेगा, बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्लियर? हाँ, दिस इज व्हाट डेबिट एंड क्रेडिट। कौन है ऐसा महान व्यक्ति इतना लेट आया? चल कोई नहीं। इज इट क्लियर? व्हेन समथिंग इज ड्यू टू, ठीक है, इट मीन्स यू विल गेट दैट अमाउंट, एंड व्हेन समथिंग इज ड्यू ऑन यू, इट मीन्स दैट यू हैव टू पे दैट अमाउंट, यू आर सपोज टू पे दैट अमाउंट, दैट इज व्हाट ड्यू। सो क्रेडिट मीन्स एनी ट्रांजेक्शन विच रिजल्टिंग, या कोई भी वो इफेक्ट जिसमें बिजनेस को कुछ देना है। अब बिजनेस क्या दे सकता है? आइदर या तो कैश में कैश दे सकता है, या भाई कुछ नहीं देगा तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन समथिंग लायबिलिटी इज क्रिएटेड ऑन यू और यू आर पेइंग समथिंग टू समबडी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इफेक्ट। क्लियरली सुनो, ये चीज़ आप कहीं बुक में नहीं मिलेगी, कोई टीचर नहीं बताने वाला। ठीक है, ध्यान से सुनो। सीधा लोग टीचर क्या है, सीधा गोल्डन रूल्स बता देते हैं, ये इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। फिर बाद में बच्चे को क्या, जब एडवांस एंट्रीज आती है ना, जब बहुत डिफिकल्ट एंट्रीज आती है ना, तब ये सब सर के ऊपर से बाउंस चला जाता है। ठीक है, क्लियर? देन यू विल गेट द बाउंसर्स। और फिर लास्ट में क्या होता है, यार ये अकाउंट्स अपने बस की नहीं है, छोड़ देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, अपने बस की नहीं है। ठीक है, तो हमको उस वो स्टेज पे नहीं जाना है। हम इसलिए इतना स्लो चल रहे हैं कि हमको चीज़ों को समझना है। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज द डेबिट? व्हेन समथिंग इज गिवन टू बिजनेस, बिजनेस को मिल रहा है, दैट इज व्हाट डेबिट। बिजनेस को मिल रहा है वो चीज़, दैट इज व्हाट डेबिट। और जो बिजनेस को देना है, दैट इज व्हाट क्रेडिट। फिर से समझ में आया? बिजनेस को कुछ चीज़ मिल रही है, दैट इज व्हाट डेबिट, एंड बिजनेस को कुछ देना है, आज देना है या बाद में देना है, दैट इज व्हाट देना है, दिस इज व्हाट क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आया? अच्छा, तो कब होता है भाई डेबिट क्रेडिट? देखो, सो यू कैन सी
ठीक है। सो क्रेडिट इफेक्ट कब होता है? व्हेन एसेट डिक्रीज, और ध्यान से, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी अब समझ में आएगा। अब देखो ये पहला स्टेज है, सिंपल बताया डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब होता है। अब अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ डेबिट क्रेडिट क्या होता है। अब इससे ही आपको गोल्डन रूल्स निकलेगा, ये दो इन दोनों से ही गोल्डन रूल निकलेगा। तो स्टेज बाय स्टेज समझना है अपने को। फर्स्ट स्टेज इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मीन्स व्हेन समथिंग इज गिवन टू द बिजनेस, बिजनेस इज टेकिंग दैट थिंग, एंड क्रेडिट मीन्स व्हेन समथिंग इज गिवन बाय द बिजनेस, हमको देना है, ठीक है। तो अब अकाउंट में क्या हो गया, ठीक है। अब हमको डेबिट क्रेडिट तो इनके हिसाब से समझना है ना, ये गोल्डन रूल्स, ये पांचों की चीज़ के हिसाब से समझता। अब देखो क्या कहता है वो चीज़, व्हेन एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इज क्रिएटेड, दैट इज क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। कौन है यार तब बीच में बंदा, उद्धव अग्रवाल, आइए स्वागत है, ठीक है, क्लियर। सो दैट लायबिलिटी इज क्रिएटेड, so credit effect is what when asset is decreasing और liability is created। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों है, ठीक है, वेट। और डेबिट इफेक्ट क्या है, when asset और expense oblique loss is increasing। सर अभी तो ये बड़ा सिंपल लग रहा था कि सर डेबिट कुछ बिजनेस को मिल रहा है, क्रेडिट बिजनेस को कुछ देना है, आज नहीं देना है तो कुछ दिनों के बाद देना है, ठीक है। आज दिया तो पेमेंट कर देंगे कैश से या चेक से, और कुछ दिन के बाद देना है तो भाई लायबिलिटी होगी, बट इट इज़ ड्यू ऑन यू, आपको देना है वो अमाउंट। एंड डेबिट मीन्स समथिंग यू आर गेटिंग। अब सर इस चीज़ को आप प्रूव करो कि आपने जो लिखा है, कि भाई ये क्या लिखा है सर आपने, कि एसेट डिक्रीज होता है और लायबिलिटी क्रिएट होती है, या लायबिलिटी क्रिएट हुई है लायबिलिटी इंक्रीज होती है। मान क्रिएट की जगह मान तो लायबिलिटी इंक्रीज, व्हेन एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, दैट्स ऑल, ये मान के चलो, तो वो क्रेडिट इफेक्ट कहलाता है। और डेबिट इफेक्ट आता है जब एसेट इंक्रीज होता है या एक्सपेंस या लॉस कुछ भी इंक्रीज होता है, तो हमारा ये डेबिट इफेक्ट होता है, ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखो अब वो गोल्डन रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ही मैं आपको गोल्डन रूल्स निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ व्हाट आर द गोल्डन रूल्स, और फिर आप उन चीज़ों को सोचोगे, ठीक है। मैं आपको एक एक और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते रहूँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, कैपिटल, नेक्स्ट एसेट, नेक्स्ट लायबिलिटी, चौथा एक्सपेंस एंड लॉस, और पांचवा प्रॉफिट एंड गेन। अब देखो ये गोल्डन रूल्स कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने यही सीखा कि व्हाट इज डेबिट, व्हेन समथिंग इज गेटिंग इन द बिजनेस, बिजनेस को कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, बिजनेस को मिलने के आसार है, दैट इज व्हाट डेबिट इफेक्ट। एंड क्रेडिट इफेक्ट, बिजनेस हैव टू पे, बिजनेस के ऊपर है, या तो आप तुरंत पे करो या तो उधार पे करो, दैट इज व्हाट क्रेडिट इफेक्ट। अब देखो, अब इस चीज़ को हम अगर इन पांचों चीज़ों के हिसाब से देखें, तो अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो अकाउंट्स क्या कहता है, क्रेडिट क्या भैया, जब एसेट डिक्रीज होता है या लायबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज व्हाट क्रेडिट। और डेबिट क्या है, जब एसेट एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस लॉस ऑब्लिक में है, एसेट या एक्सपेंस जब बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट डेबिट इफेक्ट। देखते हैं, देखो सबसे पहले हम कैपिटल को देखते हैं। नाउ कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल मैंने आपको याद रखना, अकाउंटिंग टर्म के टर्म में ही समझाया था, आपको बहुत ध्यान से समझाया था। कैपिटल इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ये आपको बात याद है,
याद है यस कि सर। नहीं याद है? हाँ यस सर। हाँ, थर्ड पार्टी के प्रति जो लायबिलिटी होती है हम उसको तो, अच्छा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग क्लास करते हो ना तो थोड़ा शांत जगह बैठा करो ना। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली है या किसी को एक शांत जगह नहीं मिल सकती है रहने की। सब पापा मम्मी के साथ एक दो भाई बहन है, आराम से कोई एक रूम लगता है जैसे सड़क के बीच में बैठ के क्लास कर रहे हो, गाना चल रहा है, टीवी चल रही है, तो फिर क्लास क्या करते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। शांति से बैठ के पढ़ा करो ना एक जगह, आइसोलेट होकर थोड़ा पढ़ा करो, छत पे जाके कोई कमरे में बैठ के पढ़ लो, या एक शांति। जब भी कोई बच्चा माइक को ऑन करता है इतना शोर होता है जैसे लगता है कि बीच बाजार में बैठ के क्लास कर रहा है। तो शांति से बैठे जाएगा, ठीक है। या आपके भाई बहन की आवाज़ आने लगती है, इट मीन्स यू आर नॉट सिटिंग इन बिटवीन दैम, सो उससे फिर कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। याद रखना, आप अपने आप को थोड़ा सा पढ़ना है। अब ये आपकी 9th 10th और 8th की पढ़ाई नहीं है, चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, तो थोड़ा आइसोलेट होके ध्यान से, ठीक है, शांति से बैठ के पढ़ा करो। और अपने घर वालों को बोल दो कि जब तक हमारी क्लास चल रही है डोंट डिस्टर्ब, हमको कोई घर के काम के लिए उसके लिए नहीं भेजे, ठीक है। कि घर वालों को तो क्या लगता है बच्चे घर पे ही हैं। एक मिनट है, मेरी क्लास है, देखो आगे बुलाओ, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सो देखो, कैपिटल क्या है? इट इज़ द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, ठीक है। अब देखो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर यानी कि अब कैपिटल क्या होगा? या तो बिजनेस में इंक्रीज होगी, ठीक है, या तो डिक्रीज होगी, दो ही चीज़ होगा। अब कैपिटल डिक्रीज कब होती है? जब भाई हमको लॉस हो जाता है, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा कोई लॉस हो जाता है, किसी भी प्रकार से लॉस होता है, कैपिटल डिक्रीज होती है। या जो ओनर है वो ड्राइंग कर ले, पैसा ही निकाल ले बिजनेस में, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर ले। और कैपिटल इंक्रीज कब होती है? जब वो कैपिटल बिजनेस में लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो ये देखो कैपिटल क्या है? इट इज़ ए लायबिलिटी टुवर्ड ओनर, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट इफेक्ट। सो whenever in any transaction capital is increasing, it will be credit, it will be always credited, ठीक है। एंड whenever it is decreasing, जब डिक्रीज हो रही है तो दो ही रीजन से डिक्रीज होगी। क्यों? ड्राइंग, या तो ड्राइंग करने से डिक्रीज होगी क्योंकि ड्राइंग है कि भाई उससे कैपिटल कम होती है, या फिर एक्सपेंस से। अच्छा, ड्राइंग को हम क्या कंसिडर करते हैं? लॉस, और एक्सपेंस लॉस। अभी देखो एक्सपेंस एंड लॉस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आए? तो एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है? डेबिट, समझ में आया? जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, लेकिन जब वो किसी चीज़ से कम होती है तो डेबिट, दैट विल बी डेबिटेड, तो वो कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अभी क्लास बंद करने का टाइम आ गया तो ज्वाइन करने से क्या मतलब, ठीक है। चलो क्लियर, मैं पूरा गोल्डन रूल्स में आई विल टेक योर 2 to 3 क्लासेस, जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। एसेट, नाउ एसेट, अच्छा अब ये जो कैपिटल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। क्रेडिट क्या था? व्हेन समथिंग इज ड्यू ऑन बिजनेस। अब मैंने क्या बताया? क्रेडिट क्या था? समथिंग। अब कैपिटल बिजनेस लेके, अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और ओनर अलग अलग है। बिजनेस एक इंडिविजुअल पर्सन है, ओनर एक इंडिविजुअल पर्सन है, बिजनेस का एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन ने आर्टिफिशियल पर्सन को पैसा दिया, समझ में आया? तो अब ये बिजनेस के ऊपर ड्यू है पैसा ऑन बिजनेस, कि मुझे ओनर को बिलोंग करता है ये पैसा, मेरा नहीं है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट वो उसमें पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है ओनर के थ्रू, तो ये पैसा, दैट इज वाई इट इज कैपिटल। इट इज कैपिटल इज इंक्रीजिंग इज क्रेडिट व्हेन समथिंग इज ड्यू ऑन द बिजनेस। दैट इज वाई जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो पैसा बिजनेस के ऊपर ड्यू हो जाता है, दैट इज वाई इट इज क्रेडिट इफेक्ट। नाउ कैपिटल इज डिक्रीजिंग, कैपिटल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अब डिक्रीज किस रीजन से होगा? या तो ड्राइंग होगी, या तो एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा। अब ड्राइंग में क्या है? बिजनेस से कोई चीज़ बाहर जा रही है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इधर देखो, ठीक है। एक्सपेंस लॉस होते हैं तो क्या होता है? डेबिट इफेक्ट होता है। यानी कि जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल डिक्रीज होने, जैसे एक्सपेंस लॉस या कोई भी ड्राइंग होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट इफेक्ट। व्हेन कैपिटल इज डिक्रीजिंग इट विल बी डेबिट इफेक्ट, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीजिंग क्रेडिट इफेक्ट। अच्छा, क्लियर? डन? यस सर। एक मिनट, ठीक है। देखो मुझे सर थोड़ा सा बुला रहे हैं, कुछ मीटिंग हुई 12th का रिजल्ट का है,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सब याद होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक मिनट में इसको सेव कर लेते हैं। ओके सर। डोंट वरी, वी विल गो, जितना हम स्लो चलेंगे ना अकाउंट्स में दैट, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम जितना स्लो चलेंगे अकाउंट्स में, वी विल गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। कहा था ना भाई, जिस गाड़ी में जितना फ्यूल रहता है तो वो उतना दूर तक जाती है, ठीक है। अब जल्दीबाजी में कम फ्यूल ले लिया और तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो अभी हम वी आर टेकिंग फ्यूल ऑफ दिस नॉलेज। हम जितना, अब हमको जब तक हम पूरा टैंक फुल हो जाएगी नॉलेज से, फिर जब हम बहुत तेज़ भागेंगे, फिर हमको अकाउंट समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर बाकी के चैप्टर हम बहुत जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।